Okay, thank you so much. You're lovely. And now I will invite the host for this evening's show. Ladies and gentlemen, a round of applause to Sana Khan Niazi. Hello guys, how are you? I think Fahim ne party start kar diya already. Welcome to Comedy Scene stand-up comedy show. A special thanks to T2F for providing such a great platform. This show is dedicated to the parents of those children who've lost, parents who've lost their children to comedy. We have, it's so good to see all of you come here today. Karachi mein काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, so it's getting hotter day by day. So we apologize in advance if it gets a little stuffy here, and we hope to God you guys are wearing deodorant. I'm Sana Khan Niazi. I'll be your host for tonight. It's some people are very good at making people laugh. These will be the performers tonight. Then there's some people who can't tell a joke to save their lives. These people are hosts to these shows. We have a great team of performers here. जैसे एक zoo जाने का फ़ायदा ये होता है कि एक ही जगह पे आपको कई किस्म के जानवर मिल जाते हैं. इसी तरह हमारे पास भी बहुत वैरायटी है. You guys are gonna love them. Come on guys, admit it. We have Bassam here. Bassam Shazmi. We're happy that he's performing with us. He's even happier that he is. There is Harold John. Yeah. Not the one from Harold and Kumar, although he tries to act like him a lot. We have Kashif Shahzad. He's a very interesting personality. इनके बारे में कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, पर क्योंकि ये बड़े हैं तो थोड़ा तमीज़ से रहना पड़ता है. We have Faraz Ahmed. क्या बात है इनकी, क्या बात है. Nida Fatma, she's the sole female performer tonight. She's also the one जिसकी वजह से ये सारे तमीज़ से रहते हैं. Well, she tries. We have Hassan bin Shaheen. ये वो डॉन है जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं. We have Fahim Azam. He, along with some of these other guys, is responsible for putting up this show tonight. He's also responsible for all the bad jokes these guys are going to tell here, because he keeps telling them, you can do this. But it doesn't always work, That's how I ended up here. We have JD in the house. Junaid Malik. इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Fahad Qazi. He's the OCD of the lot, and we still love him. So let's not keep you from the awesomeness that these guys are going to share with you here. We're going to start with Bassam. He is generally a very hyper personality. इनकी excitement का आलम ये होता है कि हर शो से पहले इन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा इस बार नहीं. He is a very talented young man. He, apart from being the producer at Heritage Foundation, he has voiced over 3 characters in Teen Bahadur. He has worked with Danish Ali and Ali Gulpir and a lot more like that. So ladies and gentlemen, please welcome Bassam. Good evening, everybody. Smells like weed here, वैसे.
Everyone's prepared, by the way. That's nice. That's nice. Everyone's here for laughter. So let's start with geography. Eh? Imagine Pakistan, the geographical look of it. It doesn't look like a T-Rex to you. ऐसे करके, है ना? Something like कि एक बच्चे ने मतलब बर्थडे पार्टी पे कोई डायनासोर बनाया था and everything went wrong. It's like, I mean, imagine the fact that the Britishers, when they were, you know, annexing India, वो लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? And everyone's like cheap, drunk. The British Empire is, you know, bankrupt and all they're going, hey, चल, India पे लकीरें मारते हैं. अभी मंगवाया है सिरल रैडक्लिफ इंग्लैंड से. झक नहीं पाता उसको इंडिया गया. आ जरा आंखें बंद कर. अब आप लगा. और and then all the Britishers are going, oh shit, Cyril, तुमने पंजाब को एनेक्स कर दिया यार. Oh shit. और उसके बाद बोला, अरे तूने बलूचिस्तान दे दिया. उनको तो पता भी नहीं है पाकिस्तान क्या है यार. मतलब और फिर सिरल नॉटी बॉय यार, तुमने इंडिया के दूसरे साइड पे पाकिस्तान लगा दिया. That is so naughty of you, Cyril. I mean, वो बाद में बेचारे पछताएंगे वो लोग बेचारे. Because at the end, West Pakistanis are racist to Bengalis, and we know it and we encourage it, by the way. So we were talking about the T-Rex. You know, imagine it like this. ऐसे करके और उसका एक गोश्त का लोथड़ा उस साइड पे, तो उसके लिए वो he's just trying, Bangladesh, ऐसे ट्राई करते हैं. And बेचारे के पास the tail is gone because technically Balochistan isn't part of Pakistan. And then the back of the dinosaur, वो भी बेचारी diseased है क्योंकि फाटा and KPK have a lot of diseases in them. तो बेचारा ये एक crippled dinosaur है. और फिर उसका मुंह कश्मीर, and it's always dotted. It's like plastic surgery हुई हुई है. मतलब plastic surgery होने वाली थी, वो पैसे खत्म हो गए तो लकीरें लग गई उधर. So technically, Pakistan is two states. There's this Punjab, which is the big belly, जहाँ पे सारा पैसा जाता है, corruption जाता है, bribery जाता है, और सारा कचरा कुबूर निकाल के ना, सारा जो digestive system है वो सिंध है आपका. वहाँ से अपर इंटेस्टाइन से लोअर इंटेस्टाइन जाके सारा शिट कराची से बाहर निकलता है. एवरीथिंग शिट कराची ना, मतलब मगर जितना भी थैंक यू सो मच. मगर जितना भी आप कराची को मनहूस बोल दें, जितना भी गंदा बोल दें, इट्स द मोस्ट डाइवर्सिफाइड. आई मीन लुक एट ऑल यू है ना, डाइवर्सिफाइड पीपल. बट वी स्टिल आई थिंक डोंट प्रैक्टिस डाइवर्सिफिकेशन. यू नो कि मैं आई नोटिस वंस के मैं कराची ईट फेस्टिवल पे आ गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम थिंकिंग, अरे आई नो दिस गाय, अरे आई नो दिस गर्ल, अरे ये तो टैग हुई थी उस फेसबुक पेज पे. तो यू लिटरली नो एवरीबडी, है ना. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम थिंकिंग, अरे इफ आई गो एंड से हे 1%, everyone go, yeah, 1%, what's up, hey, 1%, ऐसे करके everyone will be like, hey, 1%, and they're all in the same place. There are Karachi Literary Festival, the Karachi Tea Festival, ये न्यूप्लेक्स में भी होते हैं, ये इंडस वैली के कॉन्सर्ट में भी होते हैं, सारे मतलब एक आपके रिश्तेदार ही होते हैं. मेहंदी पे भी आप लोग मिल जाते हो, ऑफ कोर्स ये होता है. यहाँ अरे तुम्हें जानते हो तो but I figured it out. Everything happens in the same vicinity. So अगर ये जो कंजर मार्केटिंग बर्गर बॉयज जो हैं, अगर ये सिर्फ से अपनी विसिनिटी से बीच में विसिनिटी में कर लें शहर के, तो there might be more diversification, you know. There might be some more practice in our Karachi diversification. But हाँ, एक बार होती है diversification, जब सुबह मेड आपके पास घर आती है, तब आपके पास बहुत diversification होती है. By the way, ये joke नहीं था, ये was very 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 serious. तो but yeah, what a great year we've been having, eh? Sharmeen Ubaid ने second Oscar जीत लिया. Yeah, man. Someone who we should not name got hanged.
And coincidentally, Shehbaz Taseer came back. What a coincidence. Our government works in a very, very mysterious way, but still it's progressing. It's still progressing, you know. It was confused for 63 years. And now it's finally given, you know, the women rights bill, and everyone should support that. और उसके बाद फिर इन लोगों ने minorities को public holidays देना शुरू हो गए. Christians को अपने, you know, they can practice their holiday, Easter and Holi for the Indians, you know, except for Parsis, you know, because they're just left. There are a few of them just left now. तो वो बस वो they can leave and all, but थोड़े से तो रह गए मतलब बेचारे से. मतलब but it's an irony, you know. Parsis were the ones who made the economy of Karachi. They were the ones who are actually the people, the natives of this city. मगर हमारे जैसे मुहाजिर आए, and we took them all. Like मतलब, hello, myself Bassam. I'm new here. Very lovely place. You're not a Muslim. Hey, आजा. कब बेटा? अरे कोई problem नहीं है, कोई problem. He's just leaving. Yeah. तो यार बेचारे पारसी यार हम लोगों ने मार नहीं दिए, but they just left, you know, बेचारे. But anyways, इतनी diversification और पारसीज, but हमारे पास एक नया बंदा आ गया है to represent us मुहाजिर्स, मुस्तफ़ा कमाल. So Kamal is here. नहीं मैं नहीं करना चाहता. प्लीज आपने मारा था. तो मैं उल्टे फ्लैग से अपना पार्टी बनाना चाहता. मेरे भाइयों. Damn Mustafa Kamal, but dang, good for him. Somebody's crying, you know. So you know, तो कराची में बहुत कुछ होना शुरू हो गया है. But let's see कि अगर हम मुस्तफ़ा कमाल के बाद से अगर हम हट जाते हैं तो कराची. Fuck. I'm so sorry guys. No problem. Sorry. Hey, I was about to say, you know, कितने खौफज़दा हो गए मुस्तफ़ा कमाल, इतने डर रहे हैं लोग. But no problem. We have our rangers, man. We have our rangers who are cleaning up the society. The only problem है जब भी आते हैं, मेरे एक बच्चे को मार दिया. Sorry. मैं वहाँ पे जा रहा हूँ बचाने दूसरों को. मैं मार क्यों रहा हूँ लोगों को, protesters को. Okay. That didn't work, by the way. That rangers dog didn't work. But no. I'm cool with that. Sorry. So, but you know, speaking of people who get away with things like rangers, Ayan Ali, dude, she's out of the ECL list. Can you believe it? She's so hot. She can do anything in the world. Isn't it like a James Bond film? है जिसमें एक Bond girl है बिल्कुल जो she can do anything she wants to, and then she goes दूसरी जगह चली आती है. मतलब don't you think एक फिल्म बन सकती है आयान अली पे, आयान अली and of course दूसरे भाई जो हैं उनके 007 जो हैं, मतलब उन पे एक बन सकती है पूरी मूवी, you know. But you know, it's like starring Faisal Qureshi of Ufone, sponsored by Ufone as Asif Ali Zardari and Ayan Too Hot for Pakistan Ali in Ian Fleming's How Many Can You Steal? ऐसे करके चली जाए. But Ayan Ali को छोड़े यार, she's too hot for us. She's too hot for us. कराची में 2 साल पहले एक टूर स्टार्ट हुआ था for the pretentious people who didn't know कि शायरा फैसल से सिर्फ एयरपोर्ट जा सकते हैं. तो उनके लिए एक टूर स्टार्ट होना शुरू हो गया है. एंड देखो ओ यार कराची की सकाफत है, ओ यार I'm so cool. तो वो सकाफत जो हम यूजुअली देख चुके हैं, तो व्हाट इफ एक रियल कराची टूर होता और उसमें क्या हो रहा होता, मतलब द रियल कराची टूर. मतलब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम बख्श आपका कंडक्टर. एक्सक्यूज मी, लांडी माली रकाला बोर्ड नाता खान.
जी अस्सलाम वालेकुम जी, जो यहाँ पे एयरपोर्ट जाने के बहाने आया था वो प्लीज़ बाहर निकल जाए, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अब खैबान इत्तेहाद से। जी, इत्तेहाद से भी आगे बहुत शहर है, बहुत ट्रू, आई एम टेलिंग यू। बट अगर हम इसके लेफ्ट पे देखें तो एक अजीम बिल्डिंग जो पॉर्न एडवर्टाइज करती थी, और इतना एडवर्टाइज करती थी कि इतना पैसा आ गया इन लोगों के पास कि पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन नेटवर्क्स ने बोला अबे बंद कर इसको, हमारा कोई नेटवर्क देखता ही नहीं। कराची कट थ्रोट बिजनेस, यू नो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और नाजरीन, अब हम आ गए हैं कराची की सबसे लंबी सड़क पे, शायरा फैसल, named after the Saudi king who we don't give a shit about, who we never even give a shit about. मगर अगर आप जहां से टर्न करेंगे, अरे ये देखिए कायदे आजम का हाउस, कायदे आजम रेजिडेंसी, मगर कुछ नहीं होता, हम यहां से चल पड़े, कुछ नहीं होता, ये यहीं पर ही रहेगी। मगर जो साइट है वो ये है, शिट एडवर्टाइजिंग। ये देखिए, कपड़े कपड़े कपड़े, लड़कियां, हाउ टू लर्न इंग्लिश, how to learn English, hate speech. Oh, we'll ignore that, you know. But thank God for billboards, you know, because there's two perspectives to it. एक तो हमें आसमान देखने को नहीं मिलता, वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, I don't know, but कराची के जो colors हैं are so dark, grey, पान की पिचकारी. And there's this, have you noticed this one green tree that is all over Karachi? Like this one green tea that's dusty and everything is all over there. तो कुछ तो है जो बिलबोर्ड्स की वजह से हमें रंग रूप नज़र आ जाते हैं, मतलब ताकि वी कैन एंजॉय, फोटोशॉप्ड बट एंजॉय, है ना। तो अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के वैसे जो भी एडवर्टाइजिंग में है, बाय द वे, किल योरसेल्व्स, वेरी वेरी बैड प्लेस टू बी। मगर वी वर एट कराची टूर्स। आइए नाजरीन, अब हम आ गए हैं कराची में सबसे मशहूर जगह पे, कायद के मज़ार पे। जी, ये बहुत बड़ी जगह है तो भटक नहीं जाएगा, यहाँ बहुत हेरोइनची होते हैं। नहीं, कायद डजंट माइंड, ही वांटेड अ सेक्युलर स्टेट। इट्स ओके, लेट्स कम। आइए, हम कायद के मज़ार अब चलते हैं अंदर। अरे रेंजर्स, सर आप अंदर नहीं आ सकते। अरे मगर क्यों, ये तो कायद का मज़ार है। नहीं, कायद के मज़ार पे नहीं आ सकते आप सर, यहाँ पे रेड हुआ है। रेड? यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रही थी। ओह, सो हाउ अबाउट अ ग्रुप फोटो आउटसाइड द कायद मज़ार? थैंक यू एवरीबॉडी, दैट वाज माय टाइम। Enjoy the rest of the show. Guys, please do us a favor, थोड़ा आगे आ जाएं, I'm a little long-sighted, थोड़ा गौर से देखना है मैंने आप सबको। Thank you so much, Bassam, for that awesome performance. Next up is Harold John. इनके बारे में मैं आपको कुछ बताती चलूँ। Harold क्या है, कौन है, क्यों है, किसी को कुछ नहीं पता। परेशानी की कोई बात नहीं है, हैरल्ड ने आज सबको सच सच बता देने का फैसला किया है। Good evening. Is everybody having a good time? I'm Harold. As Sana said, I'm going to start off with a few facts. Not about myself, but 63% of women in Karachi that I've met are in love. All I did was get a haircut. And immediately after listening to this joke, 63% of women are reconsidering. They say comedy comes from a really, really deep down, dark place. There's always tragedy behind it. It's very deep down, dark. Is this deep, dark, tragic enough for you guys? Yeah. That's my favorite one. And the final fact is that 100% of today's audience will never believe me when I tell them
I'm Pathan. That's not a joke. My grandfather was a Yusufzai Pathan from Delhi who married the love of his life from Madras. This is what happens. So, my grandfather fell in love with my grandmother and converted from Islam to Christianity for love. And their love story taught me one thing. And for all the young people in here who are just realizing love, who are just finding love, who are inquisitive about love, from this story, I want you to understand that in this story, my grandfather and love, blind. Absolutely blind. So, from my grandfather's lineage, when he changed his religion for the love of his life, his family, who still lives in Delhi, extradited him. Tragedy. Yeah, the guy's been dead for 16 years. They still don't talk to him. I mean, like Jesus. Well, I know that's what started the problem in the first place, but hey, And it didn't help when he told them, think about it. What would Jesus do? So yeah, moving on to a little bit more about myself. I'm 30 years old. Did it all by myself. Key is to start when you're young. Work your way up. Helps. And not dying. That also, The problem with interracial marriages, that if I come back to my grandparents, is that I don't look Pathan, I don't look Pakistani, I don't look like a Gora like my name suggests, but the worst part, I don't even look like my own father. Because you have to go back to the part when I said, my grandfather, Pathan, married a Madrasi woman, and they had 5 zebras. I came from one of those zebras. Yeah. So, there's just don't. Listen to your parents. Marry in your own race, your own caste. It's just avoids a lot of problems. Coming back, I actually look like my Nana, who was Hindu. Who would have thought? So, my Nana was a Hindu who didn't live to see 70, 80 years of life, but he died prematurely, mostly because of excessive gambling, drinking. He was having the time of his life, but. And he taught me 2 very, very important lessons. I learned a lot from my grandfathers. First lesson, Hinduism, contrary to belief, is not genetic. Doesn't work that way. We both love cow, but in different sort of ways. Just very different ways. Thank God he's dead. And the next thing that I really learned from him is never, ever gamble. So I don't gamble, especially when I'm drunk. Living in Karachi, I get this very regular feel from as soon as somebody finds out that, oh, you're Christian. So I get the same response. It just depends on generations. The older generation would be like, oh, Christian hai, pita hoga. But you lot in the front, abhe pita hoga. I know you guys. Yeah, मैं पीता हूँ. So yeah, and learning from all these with my grandfather's lives and stuff, it's really touching, where grandparents and parents can teach you even if they're not in the picture.
It's just up to you to take the lesson on board. And I'm gonna end this with, a lot of nicknames. I had a lot of nicknames, I mean, look at me, So growing up, I grew up in Dubai. I think everybody's heard of Dubai, You need to live under a rock if you've never heard of Dubai. So I grew up in Dubai, and I grew up in a society. I went to a British school there, and I had a lot of white, Indian, Sri Lankan, just everywhere. And I was the one who was called blacks. I was like, they left the Tanzanian guy alone. They're like, no, he's not black. He's faking it. He's faking it, Then I moved to England. I did my studies in England, my bachelor's there. And I started introducing myself as Harry, because it's just so British, Harry. It's just, but then everybody thought, yeah, Arbinder. Come on, Arbinder. Yeah. I was like, no, it's short for Harry, Harold. Oh, yeah, Arbinder. Arbinder. Right. I've been living in Karachi for 2 years now. I moved back here. I moved to Karachi. And now, Pakistanis, I'm a Pakistani. Love you guys. You guys keep it very simple. It's just one nickname. Kafir. Simple. We don't mess about. We don't mess about. Kafir. So I get asked these questions like, when people are, if people were to be hateful towards you, or if people were unaccepting of you, So this is when I think about my Nana again. It was once the most important lesson my Nana taught me. He told me, beta, it was the weekend. Thank you guys, my set. Thank you, Harold, for enlightening us. That sure cleared up a few doubts. Next up, we have... Yeah, he was performing for the first time. Give him a round of applause. Woohoo! Woohoo! Next up is Junaid Malik. प्यार से इन्हें खैर प्यार से तो इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, इन्हें जेडी भी कहते हैं. जब ये गांव से कराची आए तो इन्हें लगा न्यूयॉर्क आ गए हैं, तो जुनैद से फ़ौरन जेडी. इनके और इमरान खान में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों मियाँ वाली के हैं, आगे आप खुद समझदार हैं. जुनैद. ज़्यादा मजा आएगा नहीं. थैंक यू सोनिया. सॉरी रिफत, क्या नाम है आपका? सना. सॉरी, इनको मार खानी है शायद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सना पहली दफ़ा होस्ट हैं तो काफ़ी अच्छा. मैंने स्टार्ट कहाँ से करना था? अच्छा, सॉरी. ओके, क्या मैं भूल गया बाकी में? ओह हाँ, सॉरी यार. गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे. आज सुपरमैन और बैटमैन का ट्रेलर भी रिलीज़ हो रहा था, इम्प्रोव जैम भी था, ग्रीस पीके भी लगा हुआ है, और एक कोई मैच भी चल रहा था. आप लोग सारे आए, आपने टिकट के पैसे दिए. टिकट के पैसे हमने इस दफ़ा बढ़ा दिए हैं, 300 रुपये कर दिए हैं, क्योंकि हमने कहा है कि यार जब हंसने के पैसे दे रहे हैं थोड़े ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं ताकि ज़्यादा हंसें. क्योंकि पाकिस्तानी कौम है ना, पैसे पूरा करने जानती है.
बच्चे का पैम्पर खोल के देखेंगे अभी अभी थोड़ी सी की शाम तक चल जाएगा. So, thank you very much for coming. Thanks to T2F and Comedy Scene जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली मेरे और हेरल्ड जैसे लोगों को परफॉर्म करने का मौका दिया. चलो यार, अच्छा है, कुछ एक्टिविटी तो हुई है इस शहर में, कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ हो रहा है. पहले फिर भी धरने शरने होते रहते थे, बंदे का दिल लगा रहता था. अब जब से वो ख़त्म हुए, मतलब बोर सी हो गई थी लाइफ, अजीब बोरियत हो गई थी लाइफ में. तो थैंक यू वेरी मच T2F एंड कॉमेडी सीन. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. अच्छा, धरनों से मुझे याद आया, ख़वातीन जो है ना बड़ा सपोर्ट करती हैं इमरान खान साहब को. पठान भी बड़ा पसंद करते हैं. एज अ लीडर तो मेरे एक पठान अंकल थे, बड़ा सपोर्ट करते हैं खान साहब को. मैंने उनसे जाके पूछा, अंकल जी क्यों सपोर्ट करते हैं इमरान खान को इतना, क्या ऐसा क्या है उसमें? बोलते वो बहुत बहादुर इंसान है, वो बहुत बहादुर इंसान है. मतलब ऐसा क्या, मतलब हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चला लेता है, बिजली के खंभे पे चढ़ के पतंगे उतार लेता है, कच्चा अंडा दही में मिला के खा जाता है. क्या ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाती है इमरान खान ने? अंकल गुस्सा कर रहे बोलते, वो हमारा बात सुनो, खूबसूरत आदमी, वो उसने 62 साल के उम्र में दूसरा शादी किया, ये बहादुरी नहीं दौड़ के. हम नेक किया अल्लाह से तौबा करते हैं. हम बोलते हैं खुदा यार जितना सजा देना मना दुनिया में दे दो, जन्नत में ऐसा हूर मत दो हमको. जन्नत में तो इंसान मर भी नहीं सकता है. पठान्स आर क्यूट यार, मोस्टली. क्यूट और इनोसेंट, ठीक है. आई हैव अ लॉट ऑफ पठान फ्रेंड्स एंड आई लव देम ऑल. दे ऑब्वियसली लव मी बिकॉज मैं भी थोड़ा सा क्यूट हूँ. तो एक पठान दोस्त है मेरा, वो टेबल पे बैठा हुआ है, उसने हैंड्स फ्री रखे हुए हैं, नोकिया के, सैमसंग के, क्यू मोबाइल के, डिफरेंट. एक उठाता है कान में लगाता है रख देता है, दूसरा उठाता है कान में लगाता है रख देता है. मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोला यार मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने कान भी क्या चीज़ बनाया है, आर एंड प्री फिट आ जाता है बीच में. तो इनोसेंट होते हैं बड़े पठान. अच्छा, तो हमारी कौम का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि हम ना कोई सक्सेसफुल हो जाए बंदा, कोई कामयाब हो जाए, उसको ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, कीड़े निकालने शुरू कर देने. अब एक लोकल एग्जांपल है हमारे पास, अहमद शहजाद. लोग कहते हैं ये अफरीदी की पर्ची है, ये अफरीदी का चाहता है, ये है वो, इसलिए टीम है. मतलब यार वो अच्छा भला टैलेंटेड आदमी है, इतनी स्ट्रगल की है उसने. और सबसे बड़ी बात, मतलब किसी पठान के साथ यारी लगाना कोई आसान काम तो नहीं है ना. सो गिव हिम दैट क्रेडिट. कराची में भी बहुत ज़्यादा पठान. अच्छा, तो कराची में मुझे आए हुए तकरीबन हो गए 5-6 महीने. एंड आई बीन टू लाहौर, इस्लामाबाद और डिफरेंट सिटीज़. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव फाउंड द पीपल ऑफ कराची टू बी द बेस्ट, यू नो. अनलेस किसी ने एक दिन गलती से मेरे मुंह पे गुटका फेंक दिया तो मतलब वो तो हो ही जाता है. उन्होंने देखा नहीं, मतलब कर दिया तो. बाकी बहुत अच्छे लोग हैं कराची के. They say Karachi is a city that never sleeps. मैं सोचता था कि इस शहर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है. They don't sleep. They must have been doing something. पॉपुलेशन बहुत बड़ा मसला है यार.
कराची के नहीं पूरे मुल्क का ही मसला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि, और खैर एक ही वजह है कि हम वो बहुत करते हैं शादियाँ, बगैर किसी वजह की शादियाँ हो जाती हैं ना इस मुल्क में। ऐ बाहर मतलब आपने फिल्में देखी होंगी अंग्रेज़ी, वो बच्चा अपने पापा से पूछता है डैडी हाउ डिड यू मीट मॉम, एंड वो बताता है हम पार्टी में मिले और फिर हमने पार्टी की और फिर हम 2 साल इकट्ठे रहे, फिर मतलब बहुत सोच समझ के शादी करते हैं। एक हमारा मुल्क है, मेरे एक अंकल थे, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे वो। मैंने सोचा अंकल जी क्या सीन है, आंटी को जानते थे आप क्या? बोलते हाँ बेटा जी हम जानने वाले थे, मेरी अम्मी और इनकी अम्मी कपड़े सिलवाने एक ही दर्जी के पास जाती थी। शादी तो बनती थी मतलब अब यहाँ पे। तो ऐसे तो शादियाँ होती हैं हमारी तरफ, और शादियों पे भी ना जिसकी शादी हो रही है उसको लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर रहे हैं, हाँ जी बेटा जी शादी हो गई, चलो यार बड़ी खुशी हुई यार, बड़ी चलो यार अल्लाह ने तुम्हारा घर भी आबाद कर दिया। मतलब मैं कोई सड़क पे पड़ा हूँ। अंकल जी मतलब आप अपनी शक्ल देखें, आपकी शादी हो सकती है तो मेरी में ऐसा कौन सा मौजा हो गया? अजीब लोग हैं। वैसे शादी करनी चाहिए, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये, जितनी जल्दी हो जाए कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा अवसाद पता है कौन होता है? उसकी गलतियाँ। जितनी जल्दी गलती हो जाए अच्छा है ना, बंदा सीख जाता है। और एक आदमी से नहीं सीखता तो इस्लाम में तो वैसे भी 4 की इजाज़त है। शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मसला शादी में नहीं है, मसला रिश्तेदारों में है। क्योंकि अगर आपकी शादी के 5-6 महीने बाद इफ़ योर वाइफ इज़ नॉट प्रेग्नेंट देन पीपल आर गोइंग टू कम अप विद स्टूपिड स्टफ लाइक, वो अंकल आ जाएंगे, हाँ जी बेटा जी कैसा चल रहा है सब कुछ? चल रहा है ना? And this doesn't end here. मतलब they not only want you to have a child right after the marriage, they want you to keep having babies in a regular fashion. कज़न आ जाएंगे, ओ यार मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे छोटे बच्चे ना बहुत पसंद है, तेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। Just imagine, मतलब वो क्या कह रहा है कि dude you need to have a new baby because I don't like the old one anymore. मतलब मैंने थिएटर खोला है ना, हर हफ्ते मैं नया प्ले चलाऊं यहाँ पे। साला दादियाँ बड़ी अजीब होती हैं, इनके थोड़े सारे बच्चों से इनका दिल नहीं भरता। पता नहीं मतलब इनका बहू के साथ मसला होता है या क्या, एंड दे वांट हर टू गो थ्रू ऑल दैट पेन और व्हाटएवर। मतलब आए मेरे भतीजे के घर में 4 बच्चे हैं, कितना बड़ा बड़ा घर लगता है। मतलब दादी अम्मा आपके भतीजे की शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं। एक बच्चे में 9 महीने लगते हैं, दूसरा मैथ। मतलब बीवी है मेरी, कोई एटीएम मशीन तो नहीं है ना जितने दिल किया निकलवा ली है। अजीब लोग हैं। अच्छा, क्योंकि ना मसला हमारे मुल्क में एक और ये भी है कि हम ना शादी से पहले अगर मतलब यार अभी 4 महीने हुए हैं बेचारे को, लेट देम हैव सम गुड टाइम। मैं पिछले 4 साल से जोंग की लेट नाइट ऑफर पे गुजारा कर रहे हैं वो। क्योंकि यही रिश्तेदार होते हैं कि शादी से पहले भी लड़के लड़की को इकट्ठा देख लेना, इनको मसला हो जाता है। ठीक है, आप इमेजिन करिए आप अपनी फियांसे के साथ बैठे हैं, कोई पोपो टपक पड़ेंगे बीच में, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? आपको नहीं पता लड़का लड़की में आपस में क्या बातें होती हैं? एज इफ यू डोंट नो, पेट्रोल की प्राइसेस गिर गई वो डिस्कस हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं? अबे यार मतलब घर में बैठ के बातें कर रहे हैं तो करने तो जरूरी है, मज़ारे कह जाएं। अच्छा, घर से याद है मेरी जो अम्मी है वो शी इज़ अ टिपिकल
South Asian housewife, and I sometimes wonder कि what if she was a commercial jet pilot. इमेजिन करें कि आप 20,000 फुट की बुलंदी पे प्रवास कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि पायलट साहबा कॉकपिट में है ही नहीं. उन्होंने जहाज़ को ऑटो पे लगाया और पीछे लगेज वाले कमरे की सफाई करा रही हैं. एयर होस्टेस ने दुपट्टे सर पे बांधे हुए जाले उतारे हैं. वो बेचारी मिन्नतें करिए, बाजी मेहरबानी करें, ये काम ज़रूरी नहीं है, आप जाके जहाज़ चलाएं. अरे ज़रूरी कैसे नहीं है, बंदे के जहाज़ में कोई मेहमान आ जाता है. पुत्र जहाज़ की औरतों की इज्जत ना उसकी सफाई सुथराई से होती है. तू कार्टन उठा के ऊपर रख, जिधर चीज़ आती है फेंक के चले जाते हैं. देख मेरा बच्चा, देख कल तूने भी पायलट बनना है. तेरा भी अपना जहाज होगा. अब तुझे ये काम नहीं आएंगे तो एयरपोर्ट वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी. आपको भले कोई शुगर है, कोई दिल की बीमारी है, जो मर्जी आपने खाना ना सही दबा के खा के जाना है. क्योंकि अब जहाज़ आए मेहमान को खाली पेट तो भेजता अच्छा नहीं लगता ना बंदा. लेकिन मेहमान नवाजी अपनी जगह, आपने जूते दरवाजे के पास उतार के आना है जहाज़ के. कालीन बिछाई हुई है, कोई मजाक थोड़ी है. अच्छा जहाज़ में ना टर्बुलेंस होगी, टर्बुलेंस होगी है, वावेला मच गया है, बच्चे रो रहे हैं, आंटियाँ चीख रही हैं, उन्होंने अपने बच्चों को देख के, एयर होस्टेस काँप रही है. इसलिए नहीं कि टर्बुलेंस होगी, इसलिए कि जैसे ही टर्बुलेंस शुरू हुई है, पायलट साहब ने कॉकपिट छोड़ा है और गैलरी में आके ना जानेमाज बचा लिए, नफल शुरू कर दिए. या अल्लाह आज बचा ले, बस ऊपर से मदद नाज़िल फरमा अपनी. घर की बातें हो रही है तो मुझे एक याद है कि आजकल एक मूवमेंट चली हुई है गर्ल्स एट ढाबास के नाम से, यानी फैंस, गर्ल्स ऑफ ढाबा फैंस. आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ गर्ल्स एट ढाबा. आई लव गर्ल्स एट ढाबास. तो फेसबुक पेज आंटी, ओ आंटी कोना हमारी कितनी दफा तुझे कहा है तू ढाबे में ना जाया कर, ऐसे छिछोरे होते हैं. घर में अच्छी चाय नहीं बनाते हम लोग. तो आई रियली सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बिकॉज यू नो हमारे माशरे में ना औरत का घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट मेन स्टेयर एट यू. आई नो हाउ बैड इट फील्स. Because you know I've been to Miyawali and I've lived there for 4 years. And when I say I know how it feels when a man stares at you, I mean it. Miyawali is crazy यार. I mean Miyawali जब आपको पठान भूल जाएंगे. लेकिन काफ़ी सारे अच्छे लोग भी हैं मियाँवाली में. अभी हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है मियाँवाली में भी. तब्दीली तो खैर पूरे मुल्क में ही आ रही है. आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते थे, अफ़गानिस्तान जाते थे जिहाद करने, कश्मीर जाते थे. अब एलीट पुलिस में जाते हैं और उनकी फिर किसी गवर्नर के साथ ड्यूटी लग जाती है. आज खाना ना पकाना, मैं नहीं आ रहा. तरक्की हो रही है ना. अच्छा कराची की बात हो रही थी, तो कराची में ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं ना उनका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. बिकॉज बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं ये लोग कराची वाले. और ये लूज़ मोशन जो ऐसी लानती बीमारी है, मतलब ना बंदा किसी को बताने के काबिल है, ना किसी से पूछ सकता है. दूसरी बीमारियां होती हैं ना, मतलब कैंसर हो गई है तो बंदे कैंसर हो गई, अगले महीने ऑपरेशन होना है. थैलेसीमिया हो गया, हाँ हर हफ्ते 2 खून की बोतलें लगती हैं. लूज़ मोशन है, क्या पूछे बंदा उसे. लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने ना बाल की खाल उतारनी होती है.
बेटा आखिरी दफ़ा कब आई थी? कलर क्या था उसका? सॉलिड थी लिक्विड? These people are going to question the shit out of you. बात हम पॉपुलेशन की कर रहे थे, मुझे याद आया कि एक पिछले दिनों ये पॉपुलेशन में ना सबसे बड़ा किरदार जो है वो गरीब लोगों का है। गरीब मतलब अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। एक दिन फ़कीर मांगने वाला आ गया, कह रहा भाई साहब मेरे मदद कर दो, भाई साहब मेरे 7 बच्चे हैं। मेरा क्या कसूर है? बंदा रीज़न देता है ना, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांगें टूट गई हैं, या बिनाई चली गई है, मेरे से बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, मेरी मदद करें। मतलब एंटरटेनमेंट तेरी हो रही है और टिकट के पैसे मैं दूँ। सिग्नल तू तोड़े चलान मेरा हो जाए, कुंडे तू लगाया और बिजली का बिल मेरा ज़्यादा है। अरे तू फकीर है या सियासतदान है तू? ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you very much. Thank you very much. दुआ वाली आवाम तो मुझे लगती नहीं है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज़रूर याद रखिएगा, जुनेद और जेडी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। बहुत शुक्रिया। Great job, JD. Give him a round of applause. This was his first performance as well. Woohoo! हमारे अगले परफॉर्मर हैं काशिफ। इन्हें आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उमराव जान मूवी का कोई सीन चल रहा है। इनसे आप बात करेंगे तो आपको यकीन भी हो जाएगा। इनको लगता है कि तंज़ो मिज़ा में इनका कोई सानी नहीं है। इनका ख्याल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बात ख्याल में ही ठीक है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, काशिफ। आदाब। हमारा नाम काशिफ शहजाद है। हमारा तारुफ कुछ यूँ है कि हम एक सनद याफ्ता चुगत हैं। आम फहम ज़बान में चुगत को अहमक भी कहते हैं। हमारे करीबी दोस्त बिलखुसूस बब्बन मियाँ हमें प्यार से चे कह के भी बुलाते हैं। उनका ख्याल है कि चे ना सिर्फ कूल लगता है बल्कि लोगों को समझ भी फ़ौरन आ जाता है। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए जगह बना ली है। अब ये लोग दुबई के एक निजी होटल में छुप के मैच देखेंगे। आप में से इतवार बाज़ार कौन कौन जाता है? एनीबडी? हम भी अक्सर जाया करते हैं। इतवार बाज़ार जब हम जाते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। दुकानदार की कोशिश होती है कि आपका जिस्म का कोई ना कोई टुकड़ा पकड़ के अपनी दुकान में खींच ले ताकि आप उसके साथ कोई ना कोई सौदे का भाव ताव कर सकें। अभी पिछले दिनों हम इतवार बाज़ार गए तो ऐसे ही कुछ वाक़या हमारे साथ पेश आया। एक दुकानदार हमारे पीछे ही हो लिया, कहता है भाई मियाँ आपकी मर्ज़ी का हर सौदा है मेरे पास, आप आएँ तो सही। हमने कहा इसके साथ कुछ कुत्ते वाली करनी चाहिए। हमने कहा तुम्हारे पास कुत्ते के खाने का केक है? कहता है यहीं खाओगे या पैक करा दूँ? हमारा मुशाहिदा है कि हम लोग दूसरे की हौसला शिकनी करने में बड़ी महारत रखते हैं। हमें याद है एक ज़माने में हमें खलाई साइंसदान बनने का बहुत शौक़ था, तो हमने अपने दोस्त बबन मियाँ से कहा कि हम खलाई साइंसदान बनना चाहते हैं। कहते हैं देखो यार, साइंसदान का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता खला में जाने का तुम्हारा बहुत स्कोप है, आखिर को बंदर भी जाते हैं ना। हमने गौर किया तो पता ये चला कि हम लोग आम तौर से किसी भी शख्स को उसकी आधी ज़िंदगी ये बताने में सर्व कर देते हैं कि मियाँ तुमसे ना हो पाएगा, और वो बेचारा जब
आधी ज़िंदगी के बाद नाकाम हो जाता है, तो उसकी बाकी ज़िंदगी में हम उसको ये ताने मारते रहते हैं, अरे देखा हमने बोला था ना तुमसे ना हो पाएगा, एक नंबर के चुगत हो तुम, चुगत। और यूँ एक आम सा आदमी चुगत बन जाता है। अच्छा, चुगत बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप पे कड़ाके की तनकीद होती है, लोग दिल भर के एकदम रच के। हमने सोचा क्या करें कि इससे बचा जाए। हम आपको एक राज की बात बताने वाले हैं। हमने बड़ी तहकीक की है, हमने नतीजा ये निकाला कि भंग का इस्तेमाल बड़ा ही मुफीद है। अच्छा, इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि भंग के इस्तेमाल से आप पे तनकीद होना कम हो जाएगी, लेकिन इसका असर जाता रहता है। इसकी ज़िंदा तरीन मिसाल कायम अली। वालिदैन को अपने सारे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। उनके लिए आम तौर पे फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है, ज़्यादा चाहिता है। लेकिन फिर भी कोई एक होता है अगली डकलिंग जैसा। उर्दू में इसे उल्लू का पट्ठा कहते हैं। बस ये भूल जाते हैं उल्लू कौन है। हमारा अलमिया ये रहा कि हम अपने ख़ानदान के अगली डकलिंग थे। जब हमारी पैदाइश हुई तो हमारी वालदा हमारी शक्ल को लेके खासी रंजीदा रहा करती थी, क्योंकि बिल्कुल अपने दतियाल पे गए। पिछले शो में हमें याद है फ़ाहद ने बताया था कि उनकी पैदाइश पे उनके वालिद मोहतरम ने हस्पताल वालों से कहा था मेरे पैसे वापस करो। हमारी पैदाइश का सानेहा थोड़ा सा पुराना है। उस ज़माने में मनी बैक गारंटी का कोई रिवाज नहीं था। अलबत्ता हमारी वालदा को ये गुमान बहुत साल रहा कि शायद हम अस्पताल में बदल दिए गए हैं। खुद नहायत हसीन खातून है, इनकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि लोग उनके बच्चों को भी हसीन गर्दान है, मगर अफसोस, सद अफसोस, हमने इस सिलसिले में उन्हें ख़ासा मायूस किया। हमारी खुदशनासी का आलम यह है कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं सॉरी अम्मी। हमारी वालदा का दुख ये है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, इतने दर्द उठाए, कितनी रातें मैं सो नहीं सकी, और ये कमबख्त अपने बब पे चला गया। इससे तो अच्छा था मैं इसे ठंडी कोक में डाल देती, कम से कम घुल तो जाता। बचपन में हमारे घर पे जब हमारे रिश्तेदार हज़रात आया करते थे या वालदे की सहेलियाँ आया करती नहीं, तो हमें कोई प्यार करना तो दूर की बात, हमारी छोटे मुँह तारीफ़ भी नहीं करता था। अगर बातिले नाख्वास्ता किसी को तारीफ़ करनी पड़ भी जाए तो उनके चेहरे के तासुरात ऐन उस तरह के होते थे जैसे गन पॉइंट पे मोबाइल फ़ोन छिंजाने के वक्त होता है। हमारी फुप्पो, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, एक वही थी जो दिल खोल के हमारी तारीफ़ें करती थी। ए तिलत, क्या लंगूर जैसा जना है तुमने। हमारी वालदा जवाबन अर्ज़ करती कि बस क्या करें, आपके भाईजान पे चला गया। हमें अपने बचपन के हवाले से 2 अहम बातें याद हैं। एक तो ये कि हमें नज़र नहीं लगती थी, और दूसरा ये कि हमारे लिए कभी भी बेबी सोप्स वगैरह का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी वालदा हमारे लिए जूना इस्तेमाल करती थी। जिन हज़रात को क्योंकि 1% ज़्यादा हैं तो आप लोगों को शायद पता ना हो, ये जूना होता है। अच्छा, जूना जो है ना बड़े ही कमाल की चीज़ है। इसको अगर आप मतवातर इस्तेमाल करें तो आपका मुंह गायब हो जाता है और फिर कोई अंदर से नई शक्ल निकल के आती है। हमने कई साल तक इस्तेमाल किया, अब हमारी तरक्की हो गई है, हमारा काम रेगमाल से चल जाता है। हमारा मुशाहिदा है कि अल्लाह ताला पे हमारा ईमान इतना मजबूत है कि ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे मसले से लेकर के बड़े मसले तक हमने कोई ना कोई पीर साहब बनाए हुए हैं जिनके पास हमने हाज़िरी देनी होती है। महबूब कदमों में चाहिए तो पीर साहब, सास को अल्लाह मियाँ के पास भिजवाना है तो पीर साहब, बेटे की तलाक करवानी है, बहू को आग लगानी है तो पीर साहब, बच्चे की पैदाइश ना हो रही हो तो पीर साहब। बाकी सब बातें तो चलें मान लेते हैं, सही हैं। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया बच्चे की पैदाइश में पीर साहब कैसे मदद करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर यूट्यूब पे सुनकर ही उम्मीद कर लें कि आप वालिदैन बन सकते हैं।
हमारा ये भी मुशाहिदा है कि हम पीर साहब के पास ज़्यादा इसलिए जाते हैं कि अपनी तरक्की से ज़्यादा हमारा मकसद ये होता है कि दूसरे की तरक्की में रोड़े किसी तरह से अटकाए जाएँ। मसलन ए पीर साहब, ये कुछ ऐसा करो ना जुबैर भाई का कारोबार ठप हो जावे। ए पीर साहब, मेरी नन्ना उम्मीद से हैं, कोई ऐसा तावीज़ देना कि उनकी गोदा हरी ना हो। अच्छा, सारे लोग इतना बुरा नहीं सोचते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। एक खातून हमें याद आई, पीर साहब के पास गई, पीर साहब मेरी सास का फालिज हो गया, पीर साहब मर ही नहीं रही। बाहैसियत कौम हमारे कुछ रवैये नहायत दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर जन्नत में भी जा रहा होता है तो हमने सड़कें बंद करके एहतजाज करना होता है, अरे भाई वो जन्नत में जा रहा है, खुशी खुशी जाने दें। नहीं, हमने धरना देना है। हमने सोचा, हमें लगता है कि अंदर अंदर हमें शक है कि जन्नत में जाने का सीन ऑन नहीं है। फिर भी हमने सोचा कि कोई मौलवी साहब बिलफर्ज अगर जन्नत में चले भी जाएं तो आखिर होगा क्या। मंजर पेश खिदमत है। मौलवी हरदिल अजीज़ जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को जन्नत में पाया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा जन्नत का चक्कर लगाना चाहिए। अभी थोड़ी सी दूर गए थे, उनको कुछ बोरियत सी महसूस हुई। उन्होंने कहा अजीब जन्नत है, कोई जानने वाला ही नज़र नहीं आ रहा। अचानक सामने से जन्नत का दरोगा नज़र आया तो उन्होंने लपक के उसको जा लिया। कहने लगे, भाई सुभान अल्लाह, बिल आखिर हमको भी शहादत नसीब हो गई और हम जन्नत में आ गए हैं। दरोगा ने कहा, तुम्हारी मौत फटने से वाक़ई हुई थी, बॉयलर के। तुम रात को चोरी छुपे नरगिस का रक्स देखने जा रहे थे कि अचानक मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के साथ वाले ढाबे का बॉयलर फट गया। तुमको दिल का दौरा पड़ा था क्योंकि बॉयलर के फटने की आवाज़ बिल्कुल बम के फटने जैसी थी। इधर बॉयलर फटा और इधर तुम्हारी जान निकल गई। मौलवी हरदिल अजीज़ बोले, भाई तुम इंतहाई मनफी सोच के मालिक नज़र आते हो। ये कह के वो आगे बढ़े। सामने इनको एक बड़ा आलीशान महल नज़र आया। पूछने में पता चला यहाँ पे किसी दूसरे मसलक के आलम दीन रिहाइश पजीर हैं। मौलवी हरदिल अजीज़ के तन बदन में आग लग गई। भाई हम तो समझते थे जन्नत में सिर्फ हमारे ही मसलक के लोग होंगे, हैं यहाँ तो काफिरों की भरमार मालूम होती है। भाई हमें तो इस जन्नत में इस्लाम का वजूद नहायत ख़तरे में नज़र आता है, हैं यहाँ पे हमें सही वाला निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करना पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रहे थे, उनको सामने से एक हूर नज़र आती हुई नज़र आई। उनकी बाँसें खिल गईं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई इधर तो आओ, नाम क्या है तुम्हारा, और भाई ये बताओ तुम्हारा बुर्का किधर है। इस तरह बेपर्दगी को हवा देना तुमको ज़ेब नहीं देता, हैं। हुर बोली, मौलवी साहब आपके जैसे अल्लाह वालों पे तो अल्लाह की मार हो। आप ऐसा फितना है जो शर और आफत से भरपूर है। शराफत आपको छू के भी नहीं गुजरी। कुछ तो शर्म करें, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं। अरे भाई तुम तो नाराज़ ही हो गई। अच्छा जाते जाते यही बता दो कौसर कहाँ रहती है। हमारे दिल में बड़ा अरमान है हौज़े कौसर देखने का। भाई सुना है वो रोज़ वहाँ पे गुस्ले सेहत का एहतमाम क्या करती हैं। अगर ये नज़ारा पुरकैफ हमें भी देखना नसीब हो जाए तो वल्लाह इस जन्नत का मज़ा दुबाला हो जाए। हुर बोली, छिचोर पाई में आपका मुकाबला ही नहीं है। ला हौल वाला कुव्वत। ये कहना था, मौलवी साहब गायब हो गए। इसी हवाले से हमें कुछ अशार याद आए, पेशे खिदमत हैं। चाय में बिस्कुट डुबोना चाहता हूँ। चाय में बिस्कुट, मेरा बिस्कुट है। चाय में बिस्कुट डुबोना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।
और अर्ज़ किया है, इस हुस्न नाज पे धौंस जमाना हक है मेरा, इस हुस्न नाज पे धौंस जमाना हक है मेरा, फितवा एक इस बिल नाहक पे लगाना चाहता हूँ। और शेर अर्ज़ किया है कि जाम शहादत मिलता रहे मेरे मुरीदों को, भाई सुभान अल्लाह, जाम शहादत मिलता रहे मेरे मुरीदों को, दुकान चलती रहे फ़कत इतना चाहता हूँ। और ख़वातीन व हज़रात, हासिल गज़ल शेर है कि ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं हूरें दुनिया में ही कुछ पटाना चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं हूरें दुनिया में ही कुछ पटाना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और आखिर में ये बताएं, शादीशुदा कौन कौन हज़रात हैं, ख़वातीन व हज़रात? आप लोगों की खिदमत में पेश है कि बहुत दुखों के मारे हैं ये अहले महफ़िल, बहुत दुखों के मारे हैं ये अहले महफ़िल, इनको खिलखिला के हंसाना चाहता हूँ। आप ख़वातीन व हज़रात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काशिफ। काशिफ, आप संडे बाज़ार जाने की बात कर रहे थे, आप जाते रहते हैं तो एक सेकंड हैंड मुँह ही क्यों नहीं ले लेते? आपके ख़ानदान की आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट अप इज़ फराज। Faraz has been very eager to come up here. He actually even tried to bribe me to put him up first. He's so eager क्योंकि ये सबको बताना चाहते हैं कितने cool हैं. You know that kid in class, he'll do everything that everyone's doing just to prove this point. घर जाके वही अम्मी की कुट खानी है. But दोस्तों के सामने coolness ख़राब नहीं होनी चाहिए. He has been doing stand-up comedy for a year now. This is his 8th show. इनको देख के लगता तो नहीं है, but he also teaches salsa. So behold, ladies, the crazy gentleman. थैंक यू सो मच सना, आपने मेरी सबसे बड़ी सीक्रेट कूलनेस की बताई नहीं. ये सूट भी ड्राई क्लीनर से रेंट पे लेके आया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी बैटमैन फैंस डू वी हैव इन द ऑडियंस? मेरा पक्का वादा है, बाय द एंड ऑफ द नाइट यू विल गेट दैट मूवी, आई प्रॉमिस यू, ऑल ऑफ यू. सो राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू. जितने इवेंट्स हैं सब छोड़ के इधर आए हैं. यू टुक आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू मैन, कम ऑन. So, you know, I was so excited today when I updated my status on Facebook, finally in a relationship. And guess what happens? Facebook decides to send me a message. Your account might have been hacked. And mazid options diye हुए हैं. Choose which one you are dating. मतलब मेरी verification Facebook करेगा, ये क्या यहूदी साजिश है यार? And options भी. Sweet princess, dark queen, कंदील बलोच. मैंने कंदील बलोच को कब ऐड You know, I really don't like girls with double standards unless they're pretty. वो कहते हैं कि पहली नज़र जायज़ है, इसलिए मैं दूसरी नज़र नहीं डालता. नौबत ही नहीं आती. So I went to the doctor recently to consult for weight loss because clearly 42 challenge मैं afford नहीं कर सकता था. आपस की बात है, मैं afford कर सकता था, वो instructors असल में. So खैर डॉक्टर ने पूछा, बेटा can you do sit-ups? I was like, no uncle, मैं तो stand up करता हूँ. You know, opposites attract. Seriously, opposites attract, especially when they're both bipolar. You heard of clones? Yeah? That makes two of us. सना बता रही पढ़ी लिखी है, इनको समझ में आ गया ये वाला. You know, I've decided not to date women at work anymore because it's not like I don't like office romance. I love office romance. It's just that
I'm fed up with dating women with shitty jobs, man. Advertising, to be specific. वहाँ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं यार, सबको नहीं बताओ. So, you know, they say that board games खेलने से आपका intellect बढ़ता है. मैंने कुछ ज़्यादा ही खेला था Monopoly. And एक चीज़ मैंने सीखी, Monopoly is really an old game. I mean यार, rich people go to jail in that. आजकल करके दिखाओ. Yeah. You know, they say कि your girlfriend can give you various nicknames and it's supposed to feel good. Mine doesn't work that way. She's often saying, I love you tons. Sai thuk ke thai. Say life is short. You should do as many good deeds as possible. So आज आप सब लोग अपने आप से तहिया कीजिए कि कल से मैं अपने GPS सिस्टम को जब ऑन करूँगा गाड़ी में, so I'll say, hello, good morning, where would you like to go? Instead of the GPS asking you the other way, in case आपको GPS का एक्रोनिम मुझे नहीं पता, बट खैर गाड़ियों में होता है, नेविगेट करता है कुछ. वैसे कई नेविगेटर्स के अंदर सिस्टम्स हमारी गाड़ियों में होते हैं, एंड लेट्स सपोज उसमें वॉइसेस ऑफ दीज नेविगेटर्स वुड हैव बीन सेलिब्रिटीज़ और रिनाउंड पर्सनालिटीज़. फॉर एग्जांपल हमारे जनरल मुशर्रफ. सबसे पहले वेयर योर सीट बेल्ट बिकॉज प्रोटेक्शन फर्स्ट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. इफ़ देयर इज़ अ कार कमिंग रॉन्ग वे तो उस पर गाड़ी चढ़ा देना और उसको बोलना ऐसी वैसी बात नहीं है, आर्मी में मैं भी था, मुझे डर नहीं लगता है. एंड लेट्स सपोज अगर बॉलीवुड से कोई आता है, ऋतिक रोशन, कोई मिल गया, देखिए, राइट? वाह यार, तुम गाड़ी चलाओगे? पापा के पैसे से लिए क्या? हाँ, अच्छा, सबसे पहले दादी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी सीट बेल्ट बांधो और ध्यान रोड पे देना, इधर उधर मत देखना क्योंकि किसी की भी माँ बहन हो सकती है रोड पे. और जब आगे जाओगे तो जादू मिलेगा, जादू को गाड़ी में बैठाना, गाड़ी खुद ब खुद चल जाएगी. एंड इफ देयर सैफ अली खान कराची में, अच्छा तुम अभी रीगल पे हैं, सैफ फंस गया. अच्छा तुम अभी रीगल पे हैं, हमें सदर जाना है. मगर यार रीगल सदर में नहीं था क्या? खैर छोड़ो, आगे चलते हैं. आगे नैना तारा, यार नैना कहाँ से आ गई यार? नैन तारा चौरंगी है. हर दफ़ा रगड़ते हो, राज के पास जाती, मेरे पास नहीं आती यार. Speaking of Saif Ali Khan, in recent interview he said, I've lost my faith in Pakistan. यार क्यों रो रहे हो? सब मैं ही बोलूँ, I've lost my wallet, my बच्ची, my phone, my virginity. Oh no, not going there. You know, when I turned 28 last year, so aunties को एक rightful duty होती है, आपके मुंह पे आकर रगड़ना होता है, बेटा शादी कर लो ताकि इंसान बन जाओ. आंटी अंकल को बोलें दूसरी कर लें, पहली के बाद कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा. You know, there's a habit of spouses or girlfriends or whoever, they tend to call guys, oh you dog. हमारी भी खसलत है, हम कुत्ते की तरह ही पीछे पड़ जाते हैं उसके बाद, ये तो यही वाली है, इसने मुझे बुलाया था. Speaking of male attributes, you know, शादी से पहले मर्द हजरात, they can go and bark upon any hot chick they see passing by. But then when they're married, all they can do is bark to the end of their chain. Ladies and gentlemen, all the youngsters, I would like to request you all for this next activity. Could you please stand up? I'm serious. It's awkward. Comedy show mein bol raha hu, it's serious. Can you please stand up? I just request the youngsters to stand up.
आई एम सीरियस. ये मजाक समझ रहे हैं? हंसी लो चलो. I'd like to make a confession actually, तो मैं चाह नहीं रहा था पीछे वालों को नज़र आए. I do not take your laughs for granted. I will not take comedy for granted. You know why? एक मिनट. अंकल आंटी घबराए नहीं, PG-13 नहीं है. It's because I'm Batman. Thank you all. You've been a wonderful audience. Thank you so much. Thank you, Faraz. Next up is Fahim. ये एक बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है. उसके साथ साथ ये काफ़ी परसिस्टेंट भी हैं. इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश की. थिएटर करने की कोशिश की, राइटर बनने की कोशिश की, एक्टर बनने की कोशिश की. आजकल ये लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं. Ladies and gentlemen, Fahim Azam. थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोग आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको हंसाने आया हूँ तो आई एम सॉरी, मैं आपको मायूस करने आया हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशंस आपके साथ शेयर करूँगा. मतलब आईडी कार्ड पे तस्वीर हमेशा ऐसी क्यों होती है? मतलब क्या चक्कर क्या है ये? मुझे जब उन्होंने दिया ना कि ये आपका आईडी कार्ड है, मैंने कहा नहीं सर, ये रेलवे स्टेशन पे कहवा बेचता है, मेरा नहीं है. मैंने गौर से देखा कि ये क्या हुआ था तस्वीर खींचते वक्त. मतलब आमतौर पे लोग कहते हैं ना भाई तस्वीर खींच रहा हूँ, चीज़, मेरा ख्याल ये लोग कहते होंगे कुत्ती चीज़, तो फिर ये शक्ल बन जाती है. खैर जी, अंदर से खबर हमें मिल चुकी है एंड एक फ्रस्ट्रेशन हमारी दूर हो चुकी है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़. शाहिद आफरीदी हैज़ डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट. अमेजिंग. नहीं मतलब फाइनली शाहिद आफरीदी इज आउट ऑफ द टीम. ही इज गॉन, ही इज फिनिश्ड. मतलब खत्म, पाकिस्तानी टीम में दोबारा नहीं खेलेगा. मतलब ही वाज द बिगेस्ट लायबिलिटी टू द क्रिकेट टीम फिलहाल राइट नाउ. यू नो ही वाज द only liability to this cricket team. Now everything will get solved. Our batsmen will start playing sensibly. Right? है ना? Our bowlers will not take money to bowl no balls. शहरियार और नजम सेठी कहेंगे कि नहीं अब मेरा ख्याल है मेरिट को आ जाना चाहिए, हम साइड पे हो जाते हैं, स्कूल क्रिकेट ठीक हो जाएगी. सो आई थिंक ही वॉज दी ओनली लाइबिलिटी हेयर एंड आई थिंक अब पाकिस्तान का कोई भी नाम शर्मिंदा नहीं कराएगा क्रिकेट में, बिकॉज ही इज़ आउट. वेरी वेल डन. अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्लैम से आया, पोइट्री स्लैम से, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं. देर प्रेजेंटिंग देयर पोइट्रीज, और 12-12, 13-13 साल की बच्चियाँ टॉकिंग अबाउट रेप, टॉकिंग अबाउट मोलेस्टेशन, ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं जो हमने ख़ास तौर पे बसाम को करने से रोका था. मतलब यहाँ हम नहीं कर रहे और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस किस्म की बातें कर रहे हैं. और मैं सोच रहा हूँ यार ये छोटी छोटी बच्ची हैं, हमारे कल्चर में ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है. फिर मैंने सोचा कि हमारा कल्चर तब कहाँ होता है जब 6 साल की बच्ची पे हाथ रखा जाता है, वैसे जैसे नहीं रखना चाहिए. वेल यू नो, मैंने कहा था मैं कुछ फ्रस्ट्रेशन शेयर करने आया हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज. आगे बढ़ते हैं. मेरा ताल्लुक़ जिस इलाके से है वो तो नाम शाम आपको समझ में आ जाएगी, बट मैं मौलाना फजलुर रहमान का कज़न हूँ. सच्ची थोड़ा सा दूर का हूँ क्योंकि करीब का कज़न कोई हो नहीं सकता उनका. मैं ईद पे मिलने जाता हूँ, आज तक कमर को हाथ ना लगा पाया. हसरत ही रही, फिर जाते जाते लगा जाता. खैर, तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का कज़न हूँ. खुद भी कभी कभी शीशे में खड़े होकर अपने आप को जज कर लेता हूँ, तो यू कैन डू इट एज वेल. आई मीन योर कॉल. अभी विमेन प्रोटेक्शन बिल अनाउंस हुआ है और उसके बाद मौलाना साहब ने क्या कहा है आपने सुना? मौलाना साहब कहते हैं कि इस बिल की वजह से पाकिस्तान एक फ्री सेक्स जोन बन जाएगा. सच्ची सुना है ना आपने? जितना मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा ख्याल उन्होंने स्टेटमेंट कुछ और दी थी, लोग समझे कुछ और हैं. आई थिंक ही सेड इस बिल की वजह से पाकिस्तान एक सेक्स फ्री जोन बन जाएगा. एंड नहीं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा.
तो खैर अगर मान भी लेते हैं कि उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान एक फ्री सेक्स जोन बन जाएगा इस बिल की वजह से, तो ये हाइपोथेसिस को मैंने जहन में विजुअलाइज किया। मैंने कहा किस किस्म की डिस्कशंस होंगी लोगों की ना, यार तुम परेशान नज़र आ रहे हो आजकल। तो दोस्त कहेगा कि यार हाँ वो बिल अप्रूव हो गया ना, तो अब मैं पहले बीवी को मुक्के चुके छिक देता था, अब नहीं मार सकता। फ़ोन कर लेती है टोल फ्री लाइन पे, मुझे ले जाते हैं 2 दिन घर से बाहर, मैं नहीं उस पर धौंस ही नहीं जमा पर, मेरा रोब ही नहीं आजकल। अच्छा तो तुम्हारा रोब नहीं है आजकल अपनी बीवी पे, इसका मतलब मैं किसी से भी सेक्स कर सकता हूँ। मतलब लानत है नहीं ऐसे हाइपोथेसिस पे। खैर जनाब, मैं बात करूंगा साबुन की। वैसे तो फ्रस्ट्रेशन साबुन का बड़ा गहरा ताल्लुक है, आज हम एड्स की बात करेंगे। हम एड्स की बात करेंगे। मतलब पहले साबुन होते थे वो जरासीम मारा करते थे 99%, फिर टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, 99.9% जरासीम मरने लग गए, और अब हम इतना आगे निकल आए हैं कि हम 99.99999% मार देते हैं। लेकिन वो एक कीटाणु पीछे हमेशा रह जाता है। मतलब, और मैं आपको बताता चलूं, वो एक कीटाणु जो रह जाता है वही हैजे का होता है। मुझे वो साबुन चाहिए जो इसको मार सकता है। अजीब, मतलब इस कीटाणु का ना नाम होना चाहिए, इस कीटाणु का नाम होना चाहिए नोआ, क्योंकि इस एक कीटाणु की वजह से बनी नौ जरासीम दोबारा पैदा हो जाती है। ऊपर से वो क्या कहते हैं डेंटिस्ट, सेंसोडाइन, 10 में से 8 डॉक्टर्स का मानना है कि सेंसोडाइन आपके दांतों के लिए बेहतरीन है। मुझे वो 2 डॉक्टर चाहिए। असल बात उनको पता है। वो सेंसोडाइन वाले निकले थे, डॉक्टर साहब सेंसोडाइन बेचना है, डॉक्टर साहब सेंसोडाइन बेचना है, सर बेचना है, सर बेचना है। उन दोनों ने कहा नहीं, हम अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकते। दोज आर द गाय। और एड्स में अजीब, मतलब डॉक्टर पता नहीं किस, जैसे नासा की लैब में खड़ा हो ना, पीछे गोरी गोरी लड़कियां आईपैड्स लेके फिर रही हैं। अजीब सीन। और कभी भी उनका मुंह उनकी बात का साथ नहीं देता। मैं काशिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो डॉक्टर्स वाला मुंह बना सकें जरा प्लीज, आप इनकी तरफ देखिएगा। हमारी रिसर्च का मानना है कि आम साबुन 5 बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि वो आम साबुन भी हमारी कंपनी ही बनाया करती थी। मतलब क्यों करोड़ों रुपए लगा के एक मुंह नहीं सीधा कर सकते आप? व्हाट इज गोइंग ऑन? और अजीब अजीब गैजेट्स होते हैं उनके। मुझे नहीं समझ आती ये टॉर्च कहां से मिलती है जिसे हाथ पे मारो तो जरासीम नजर आने शुरू हो जाते हैं। और मामा खड़ी होती है, हो जरासीम नजर आ रहा है मुझे वो वाला, ये देखो मुख्तलिफ रंग के जरासीम। कहाँ होते? मतलब ऐसे ऐसे गैजेट्स दिखाते हैं, इजाद ही नहीं हुए अभी तक। हमने तो आज तक वही डॉक्टर देखे हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी पे भी छींक देते हैं, फिर टिश्यू लेके साफ कर रहे होते हैं। खैर, हमारे माशरे में भी इस तरह के कीटाणु होते हैं। कीटाणु समझते हैं ना? हाँ हैं, यहाँ पे भी होंगे कुछ। तो हमारे माशरे में भी चंद कीटाणु ऐसे होते हैं, जितनी तालीम दे दो, जितनी तरबियत कर लो, जो समझा लो उनको, वो एक कीटाणु जो है ना, वो ढीठ का ढीठ ही रहता, और वही सुसाइड बॉम्बर बनता है आखिर में। मेरा ये एनालिसिस है थोड़ा सा कि ये 90 की 80 की दहाई में जो लोग सुसाइड बॉम्बर बनते रहे और दहशतगर्द बनते रहे, ये सारे का सारा किया धरा इंग्लिश, पश्तो और पंजाबी फिल्मों का है। क्योंकि इन तीनों ने ना 2 ही चीज़ें सिखाई हैं हमारी कौम को, गन्स एंड सेक्स। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ये जो बड़ी बड़ी LCDs ईजाद हुई हैं ना,
ये पश्तो फिल्मों की वजह से ईजाद हुई हैं। क्योंकि किसी पुराने ज़माने होते थे, सिनेमा के लिए फिल्म बनती थी, फिर भी हीरोइन की शक्ल नज़र आ जाती थी ना, बड़ी स्क्रीन होती थी, टेंशन नहीं होती थी। उस ज़माने में फिर 14-21 इंच पे वही फिल्में चलाते थे ना, तो बस सिर्फ कुछ ऐसे हिलता जुलता था, ऐसे कुछ तो कम ठीक नहीं। फिर उन्होंने 29 इंच का टीवी ईजाद किया, तो उसकी थोड़ी सी ठोड़ी नज़र आनी शुरू हुई। ऐसे पंजाबी फिल्में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। वो हमारी एक हीरोइन थी, वो गई मेरे ख्याल है इंडिया में काम ढूंढने के लिए, बड़ा मशहूर वाक़या है ये, तो उन्होंने तोड़ के 7 बना ली उनकी, बीच में 2 चाइल्ड स्टार भी निकाले उन्होंने। तो बड़े बड़े होते थे हमारे, मतलब वो सीन होता था। अच्छा, अब इन फिल्मों में ये सिखाते थे गन्स एंड सेक्स, ठीक है। तो इंग्लिश फिल्मों में होता था चक नॉरिस होता था, कमांडो, रैम्बो। फिर पंजाबी फिल्मों में आते थे सुल्तान राही, पश्तो फिल्मों में बदर मुनी। ये सब के सब हमारी नौजवान नस्ल को, उस दौर की ना नौजवान नस्ल को एक लाइन पे लेके जा रहे थे, एक ख़ास लाइन पे। और इस लाइन पे ले जाते हुए वो एक फिल्म इंडस्ट्री जो उनको इस काम से रोक रही थी, दैट वाज बॉलीवुड। सही बात बता रहा हूँ आपको। मतलब बॉलीवुड ने इस नफ्सियात की जंग में लाखों नौजवानों को शायद दहशतगर्द बनने से रोक दिया था। क्योंकि आप ये विजुअलाइज कर ही नहीं सकते कि दहशतगर्द इंडियन फिल्में देखता होगा उस दौर की, 80-90 की। मतलब ये कोई किसी आप टेररिस्ट से पूछें तो वो आपको बताए कि हम आपके दिल में रहते हैं इज़ माई फेवरेट फिल्म। इज दिस पॉसिबल? हम आपके दिल में रहते हैं, नॉट पॉसिबल। नहीं, मतलब मुमताज़ कादरी से आप पूछें कि आप बताएं आपका फेवरेट फिल्म का डायलॉग कौन है? सेन्योरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जस्ट नॉट पॉसिबल। मतलब APS के टेरेस से पूछें तुम्हारी फेवरेट, वो तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना मस्त, मैं पैदल से जा रहा था तो मैं साइकिल से आ रही थी, किया पम पम का इशारा, मुझे बदनाम किया ना किया पम पम का। पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो बॉलीवुड वॉज स्टॉपिंग पीपल। वो उस रास्ते में ये मेहनत कर रहा था कि किसी तरीके से नौजवान इस रास्ते पे ना जाएं। बट खैर, ये इन इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी फिल्मों के मारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम से, ये जब किसी ऐसी महफिल में जाते थे ना, कोई घर होता था, मस्जिद होती थी या कोई स्कूल होता था, तो ये किसी ऐसी महफिल में जाते थे जहाँ क्लाशनकोफ़ लाइन से लगी होती थी, और उनको पकड़ाते थे, ये देखें बेटा, चेक करें, हाँ वेरी गुड। उनको सारा नज़ारा वापस याद आ जाता था। फिर एक आलिम दिखता हुआ आदमी पहले तो कमरे शमरे बंद कराता था, फिर प्रॉक्सी ऑन करता था, फिर जन्नत का ऐसा नक्शा खींचता था, ऐसा नक्शा खींचता था, आए हाय हाय हाय, वो बच्चे का, बेचारे का दिल पिघल के हलक में आ जाता था। और इस बार मतलब इस बच्चे के जहन में गन्स एंड सेक्स गुनाह भी नहीं है, सवाब है, प्रिविलेज है, जिहाद है। और आप वो उसको साथ साथ ये भी बताते थे कि इंग्लिश वो फिल्मों के हीरोज़ की तरह कि अगर तुम अचानक 40 लोगों को मार दोगे, यू विल गेट द गर्ल मैन अब देयर, और तुमसे अल्लाह भी राजी होगा। तो ये हूरों की अनलिमिटेड सप्लाई हाथ में, जहन में लेके और क्लाशनकोफ हाथ में लेके ये बच्चा निकलता है, और पेरेंट्स भी खुश हैं इनसे, क्योंकि इसी की मौत में उनकी जन्नत की टिकट भी लिखी हुई होती थी। दैट्स आवर 80s and 90s थ्रू आउट, और ये अभी तक चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, से आपस की बात है। सो फांसियाँ होनी शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा हालात बदलने शुरू हुए हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको। वो लोग जो फांसी की हिमायत में थे, फांसियों की हिमायत में थे, उनको इस बात की मुबारकबाद कि फांसियाँ होनी शुरू हो गई हैं, और जो लोग उनकी हिमायत में थे उनको इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि भाई चले गए आपसे पहले जन्नत में, आपको भी हसरत तो आप लोगों को भी होगी लेकिन कोई नहीं, चले जाएंगे जल्दी। सो अब ये सोचें, फट फुट के ही ऊपर जाएं, और वो जो विजुअल जो बनाया हुआ था वहाँ पे प्रॉक्सी ऑन करके, वो अगर सच नहीं निकले, जैसे भाई ने भी हमारे एक नक्शा खींचा, मेरे भी जहन में एक नक्शा आया कि वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ जन्नत अजीब ड्राई सी है ना, कुछ सीन नहीं नज़र आ रहा। तो फरिश्ते को बुलाएंगे, उसे कहेंगे यार इधर आओ, कहेगा जी सर, एट योर सर्विस। ये बताओ वो शराब की नहरें वहरें थी, कोई सिस्टम था? नहीं सर, वो यहाँ नहीं होता। यहाँ क्यों नहीं होता? सर हराम है। यहाँ भी हराम है? मतलब सर देखिए,
बुरी चीज़ है तो वहाँ भी हराम है, यहाँ भी हराम है. कॉमन सेंस. अच्छा चलो, शहद तो अच्छी चीज़ है ना. शहद की नहरें किधर हैं? सर ये शहद की नहर बह रही है, लेकिन ये तो रुकी हुई है. सर शहद की नहर इसी स्पीड से चलेगी ना, अब और क्या दूं मैं आपको. अच्छा बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो जो वो सर मैं इस किस्म का फरिश्ता नहीं हूं. देखो मैं अपने अकाउंट की बात कर रहा हूं, मेरे हिस्से की. मुझे वो तो ला के दो ना. आपको बहुत जल्दी है सर? हाँ जल्दी बहुत है. चलिए ये सर आपकी हूर. ओके. क्या ये तो मेरी बीवी है? जी सर ये आपकी हूर है. नहीं नहीं ये मेरी बीवी है. ये मुझे अच्छी कैसे लग सकती है? सर देखें हम इन्हें बड़ा खूबसूरत करके लाए हैं, जवान करके लाए हैं, ट्राई तो करें. देखो ये मेरी बीवी है, ये हूर नहीं हो सकती. अच्छा छोड़ो, मुझे मेरी बाकी 71 ला के दो. इसको साइड पे. मेरी बाकी 71 किधर है? सर आपको इन्हीं की कॉपीज मिलेंगी, बाकी भी. देखो ये मुझे नहीं बताया हुआ था, ऐसे नहीं था. सर मेरा ख्याल है आप मैसेज को ठीक से समझे नहीं हैं. देखो मैं मैसेज को ठीक से समझा होता तो मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा होता, यहां ना खड़ा होता. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. Thank you so much, Fahim. We really enjoyed all of that. Next up is Nida. Nida is like every other woman in Pakistan, overqualified to the point that she can't find a man of her caliber. She's an artist. True story. She's an artist, she is a writer, she is a gallery manager, and best of all, she has a great voice which she uses to do voiceovers. अगर आपके घर में केबल है तो आज भी आप निदा की आवाज़ सुन सकते हैं. गौर अपार्टमेंट्स, आपके ख्वाबों का घर अब आपके बजट में. निदा फातिमा. Hello everyone, my name is Nida and I'm an artist, writer and a gallery manager. But above everything, I am an anti-offender. And here is a list of the offenses that I have made. दफ़ा 119 मैं किचन में नहीं जाती. दफ़ा 142 मैं आज तक वन डिश पार्टी पे शामी कबाब नहीं लेके गई. दफ़ा 132 मुझे आंटी के लूसी बेटों से शर्म नहीं आती. एक दफ़ा वन डिश पार्टी पे लेके गई थी केक पाइनएप्पल का, वो भी बेकरी से उठाकर. बस उस दिन के बाद से आज तक वन डिश पार्टी का इनविटेशन नहीं आया. और सबसे ख़तरनाक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दफ़ा 125 यानी कि मैं रोटियां नहीं बनाती. You know, but my worst encounter with aunties is usually at the shadis. After the usual salam dua, hugs and kisses, you know, and अच्छे से being felt up as if to see माल कैसा है, they'd ask me, "Oh, माशाल्लाह बेटा, इतना खाती हो, कहाँ जाता है सारा?" एक दफ़ा मैंने भी आंटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, "चले आंटी, आज आपको दिखाई दूं ये सब जाता कहाँ है." But do you think that being around aunties is a breeze? No. The real tough job is to be amongst these guys, amongst the comedy troupe, yes. But you know, today I take upon this challenge to tell each and every one of you what you menfolk are doing wrong. Let's start with the good guys, shall we?
a pat on the back for being raised well, you're polite, well mannered. The trouble begins when you start texting us with, और क्या हुएं, क्या करें. You'd put back the pineapple cake that you were having that was rejected from the one dish party, and they'd say, oh, Mila baby cake khala tha. Meeko bhi do. Meeko bhi chahiye. You know, acting all that sweet does not work all that well with us. Plus, did you know that diabetes is a silent killer? It's guys like these who tag you in a really embarrassing Facebook post, usually with a teddy bear that has an arrow piercing in its heart, sitting in a pool of blood that says, I miss you. Not very nice. But you know, there is this category. They are the overly charming guys. You know who they are? With too much product in their hair, you know, the cologne abusing sleek talkers. They'd call you up and they'd be like, Assalamu alaikum. Did you just drink Salan and say that? I feel that I need strong lemon max to clean my ears because chiknai to usi se jayegi. You know, these guys, and God forbid, if they ever do you a favor, you know, you genuinely say thank you, but they turn around slowly with a blank expression as if to say, किस बात का? मतलब क्या अब आइटम सॉन्ग करके दिखाऊं क्या? You know, but these overly charming guys, they're oozing with self-confidence. They'd enter the room, scanning the girls with their eyes. Honge bhale middle-aged, you know, fat, you know, but to themselves, they're the real Dhoom heroes. They'd enter the room, scan the girls with their eyes as if to say, Martiya, 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 Martiya. और वो वाली जो उधर जा रही है ना, पूछो कहाँ जा रही? मरने. But opposite to these, you know, overly charming guys, are actually the bechara sympathy seekers. And fool them for nothing light. Actually, they are the ones with the highest success rate with girls. They'd call you up and they'd say something like, तुम्हें लगता है मुझसे कोई लड़की पट सकती है? आपके दिल में ख्याल आता है? नहीं यार, sorry, not a chance. No, आप रहने दें. But we decide to be the better person and we tell them, लड़कियां तो लड़कों का सिर्फ किरदार देखती हैं. अगर किरदार देखती होती हैं तो क्या ये पसंद आते या ये पसंद आते? क्यों झूठ बुलवाते हो यार? But you know, these guys, they're actually really smooth liars as well. Some of them would call you up and they'd also say, मुझे stage 4 cancer है. You just won't believe them. Just give it up already. No, but then along from all of this list, there's this one category who just don't support the women's rights at all. And I have got some actual tweets from them which goes something like this. Sometimes women like to be attacked by men. What about that, huh? Even then male be jailed? Or don't support the women's right bill, yaar. Because every man who will be punished will be more violent than before. Nail it.
Where are these guys even coming from? And here's a man who is in complete denial. He says, there is no violence against women from men. This violence is generated from women for other women. Men are only catalysts. But you know what? Not all these men are like that. There is a kind that actually makes your heart skip a beat. The ones with the deep voice, you know, the brown eyes. They look at you and your insides melt. And there, when you look at them, you realize that, yes, this guy, he is the one, until they do this. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Nida. We have Hassan bin Shaheen in the house. थोड़ा बताने तो दें लोगों को. हसान एक बहुत कमाल आदमी है. मसला बस ये है कि इनके पास बातें ज़्यादा और बाल कम हैं. इनको बहस करना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी महारत रखते हैं उसमें, शायद इसीलिए ये लॉयर भी हैं. He is the man to go to for improv and stand-up comedy. He also leads an improv group by the name of Platoon. Ladies and gentlemen, Hassan. Hi everyone, as you know my name is Hassan, and even I'm not sure if I look like the Pakistani flag or a cartoon of Mustafa Kamal's party, but that's all right, we'll live with it. I want to talk about Pakistan because I really care about Pakistan, and I think that the reason why we are so corrupt as a nation is because of the games that we play when we're growing up. So internationally, what are the games that you play? Like you have games like tag, you're it. One person is tagged, they go, they get the other person, and then they're it. And then that's the end of that. What are our games? Our games are like Chor Pakadam Sati. I'm a chore. I will catch you, you will become a chore. Then we will catch everyone. And everyone is a chore. That's not enough. Yeah. That's not enough. We have games like Maram Pitti, where the intention is to hurt the other person. Right? We're teaching that. And okay, so growing up, you have things like Twinkle Twinkle Little Star, Baba Black Sheep. Like our kids learn things like Cham 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 Athane ki chhali athane ka pan. Let's just focus on the last 4 lines. Bhai ki dulhan kali, 100 nakhre wali. Right? अगर गोरी होती तो उसकी अदाएं होती, वो नखरे नहीं होते हैं. Right? एक नखरा टूट गया, भाई का मुंह फूट गया. What? So yeah, we're teaching our kids wild. Okay, one more thing that you need to know about me. I live in Gulistane Johar. That's not a joke, that's a fact, okay? Racist. I live in Gulistane Johar, and I identify as Mahajir not because I agree with the idea of ethnicity, but because जौहर से डिफेंस हिजरत कर जब आप आते हैं तो आप महाजिर ही रहते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास. I've noticed one thing that as a Pakistani, if you I identify as liberal. I think, if you're liberal, please give yourself a round of applause in this. Yeah, good. यही मसला, आपको इतनी शर्म आती है अपने आप से, आप लिबरल हैं, तालियां बजाएं अपने लिए. No, but like I post progressive, or like being a liberal in Pakistan is like being a Hindu in India or being an Ahmadi in Pakistan. Like they're pretty much the same thing. You get screwed over. And like whenever I share progressive content, there's this one comment that says, then it comes, Desi liberal. Ye Desi liberal hai. Like I'm always wondering, what does a Desi liberal believe in? Like, what do you mean by Desi liberal? All rotis will be consumed no matter how round they are, because they don't discriminate, obviously. Respect all women, especially your cousins. And lastly, I have a dream that one day I will see the burgers of defense and the melas of Johor rejecting chai wala and going to an actual dhaba with the girls at dhaba there. Right, those are the dreams.
But I think that's all right. I think one of the biggest problems that we face as a nation is the fact that if you talk to somebody in English, they take you seriously. If you talk to them in Urdu, they're like, हाँ भाई चूड़े, हाँ, हाँ, भंगी, साले, हाँ, जौहर के मेले, हाँ, इंटर के बॉय, मतलब judgment. I went to the bank. I'm like, मुझे मेरा अकाउंट खोलने में प्लीज़ आप मदद कर दें. इग्नो हाँ कर देंगे हाँ समझ ही नहीं आ रही ना. I don't know if I was talking to him in Urdu, इसने कहा मैं भी जो है ना करूँगा. But he was doing that, and immediately I was like, excuse me, can you please help me in opening my bank account? And they're like, oh sir, yes. Oh yes, we are from Faisal Bank. This is a gold opportunity. A silver opportunity. Ooh. You live in Gulistane Johar. आपके लिए पीतल है. No, it's true. So I was wondering that just like you have these Domino's English learning centers all over the city, what would it take to have an Urdu learning center? Like, because I'm pretty sure people would want to learn Urdu. What would those classes look like? Domino's Urdu Learning Center. Urdu for lazy people. How to read Manto. Urdu for really lazy people. Watch the movie and pretend as if you've read Manto. हाँ, Manto पढ़ा है. Or a second category, which is, what do the songs in Coke Studio actually mean? Right? Because that's something. And yeah, इसको नहीं आती ना. साले, तुम गुलशन में रहते हो. I know, but we're going home together. Right? I was also imagining कि चूँकि like जुम्मे का खुतबा is also in Urdu, तो ये class Domino's वाले ये वाली classes भी offer करेंगे, how to interpret the जुम्मे का खुतबा. लेकिन considering these classes were aimed at Defense and Clifton, तो कोई नमाज तो वैसे ही नहीं पढ़ता. तो उन्होंने कहा चलो हम इसको cancel कर देते हैं. But I think that's all right. I think एक बड़ी ज़रूरी बात है. I think पाकिस्तानी मैन जिस तरह आपको लगता है ना friend zone, भाई zone, I think पाकिस्तानी मर्दों के पास भी एक super power है, right? It's called बहन zone. सही है? हाँ, we have the ability to make any sister our बहन, right? But there's a very strict criteria to it. Okay. Do I know you, madam? Okay, she is not my बहन. Okay. Are you two together? Oh, awkward. होता है. No, but like it goes the category is this. My friend's sister is my sister. My friend's girlfriend is my sister. If I am in NED or in engineering university, all the girls are my sister. The lady who calls me her bhai, my cousin, she is not my sister because I might end up marrying her. It's not funny. It's true. I think I'll rest the night on just talking about our Pakistani cricket team because it's really important we talk about them. I think being on the Pakistani cricket team, men's team, not women are doing a good job. Round of applause for the women's cricket team. Ooh, we support them. Yeah. Being on the Pakistani cricket team is very similar to expecting physical intimacy in this country. Let me show you. Firstly, you don't get many opportunities to play at home. Secondly, the opportunities that you do get are when you go abroad. Thirdly, even when you get to play, you end up disappointing the entire nation. Thank you so much. That was my set. Thank you so much. I have one small announcement. On the 27th, which is this Sunday, we're doing an improv show. We've flown in improvisers from the UK. This is something that has never happened before. Improvisers from the United Kingdom are coming in and they will be doing improv with improvisers from Pakistan. We've been training. I have tickets with me. If you're interested, please come and talk to me after the show. I would love for you guys to come there. Thank you so much. Wow, that was amazing, Hassan. We have our last performer of the night, Fahad. ये फ़हद है. इनकी शक्ल और हरकतों में मत जाइएगा.
इनका मैं समझाती हूँ. इनका सीन वो है कि आप कहीं बैंक जाते हैं फुल सूट बूट होके, अंदर सर्कस लगा हुआ है. वैसे ये बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, मगर अक्सर इन्हें चीज़ों से शिकायत रहती है. ये तंज करने के अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट है, सॉरी, और काफ़ी अक्लमंद है, बट बाकी अक्लमंद लोगों की तरह ये बिल्कुल सेल्फिश नहीं है. ये अपना ज्ञान लोगों में बांटना चाहते हैं. फहद. शुक्रिया सना. Let's have a round of applause for Sana. So, any foodies in the house? Yeah, all right. I love fast food. शक्ल से लगता नहीं है, मगर I love fast food. मगर आजकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं. मतलब आप जाएं वहाँ पे और बर्गर ऑर्डर करें तो बर्गर आता है बिल्कुल अजीब सा, बन बिल्कुल छोटा सा, और चिकन बराए नाम, केचप कभी होता है कभी नहीं होता, मायनीज़ ऐसा, उसका टेक्सचर ऐसा अल्लाह, मतलब आपको पता नहीं चलता उसका बाप कौन है. मैंने ऐसा लगता है ऐसे किसी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ ने उसमें थूक दिया हो. हाँ बताएं आप लोग मज़ा से खा रहे होते उसको. अच्छा, जब खा लेते हैं उसके बाद टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती है. कुछ लोग आस्तीन से मुंह साफ़ कर लेते हैं, मगर नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं. तो हमें मालूम नहीं होता कि वो टिश्यू पेपर पड़े कहाँ होते हैं. वो टिश्यू पेपर वहाँ कोने में ज़मीन में पड़े होते हैं जहाँ कॉकरोच जो हैं वो बॉलीवुड के आइटम नंबर कर रहे होते हैं. अच्छा, कॉकरोच भी बड़े मतलब इतने बड़े, थोड़े ज़्यादा हो गए, इतने बड़े कॉकरोच जो हैं वहाँ पड़े होते हैं. और आप अगर गलती से उनको हुश भी कर दें तो मुड़ते हैं पीछे, आपकी पिछली टांगों पे खड़े हो जाते हैं और आपके तरफ देख के आपको मुखातिब होते हैं, हाँ भाई ये हुश क्या लगा रखा है. 4 महीने से मैं और मेरे ख़ानदान इस रेस्टोरेंट के अंदर फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, और ये जो तुम बन खा रहे हो ये पहले मेरा घर था. कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ मेहनत करने वालों की. आजकल के कॉकरोच भी बड़े बदतमीज़ हैं. मतलब इनको मुंह नहीं लगाना चाहिए. वैसे तो किसी कॉकरोच को मुंह नहीं लगाना चाहिए, मगर स्पेशली इनको आई वुड एडवाइज यू कि मुंह ना लगाएं. इट्स नॉट वर्थ इट. अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ की बात हो जाए. फ्रेंच फ्राइज़ पुराने वक्तों में हमें मिलते थे, इतने ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ डब्बे में खचाखच भरे होते थे. मतलब हम खाते थे, हम अपने घर वालों को खिलाते थे, गरीबों मस्कीनों में बांट देते थे. अगले दिन इतने बच जाते थे कि हम गाय भैंसों के चारों का इंतज़ाम हो जाता था. अब लोग पूछेंगे यार ये फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट की बातों में गाय भैंसें कहाँ से आ गई. तो मैं बता रहा हूँ, पुराने वक्तों की बात है जब यहाँ फ्रांस की हुकूमत हुआ करती थी. गली गली गांव यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ मिलते थे. आजकल हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं. आज आप गलती से मांग भी लें कि यार ज़रा फ्रेंच फ्राइज थोड़े ज़्यादा डाल देना यार, तो वो आप घूर के देख रहा होता है, एक फ्रेंच फ्राई रख रहा होता है, घूर के ऐसे देख रहा होता है जैसे ये जो एक फ्रेंच फ्राइज में डाल लो ना, ये तुम्हारे बाप पे एहसान करो, तुम्हारे बाप पे एहसान. अच्छा, ऐसे रेस्टोरेंट्स में जो है वो तासुब भी बहुत होता है. तासुब मतलब डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म जो है, रेसिज्म बहुत होता है यहाँ पे. तो आप पूछे वहाँ पे जब बोतल की बारी है, मैं बोतल से बनाता ड्रिंक्स #हलाल कॉमेडी, तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात है वहाँ पे, तो वो आपसे पूछते हैं सर, रेसिज्म की बात हो रही है, सर आप ब्लैक लेंगे या वाइट. आप कहते हैं ब्लैक. फिर वहाँ फ़िरका वारियत शुरू हो जाती है. वो पूछते हैं सर आप किस मसलक से हैं, आप अहले पेप्सी से हैं या अहले कोक से हैं. आप कहते हैं यार देखो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, बस मुझे हरी पगड़ी वाली पाकुला ला दो.
अच्छा, जो बोतलें होती हैं वो भी इतनी पुरानी होती है, 1902 की, मतलब उसके ऊपर जो लिखाई होती है वो मिट चुकी होती है। आप पाकोला की बजाय पालूला पी रहे होते हैं और पेप्सी की जगह पिस्सी पी रहे होते हैं। यहाँ पे उन लोगों का भी जिक्र हो जाए जो कि ना आपको उसूल बताते हैं फास्ट फूड खाने के। वो कहते हैं भाई पहले आप खाएं चिप्स, फिर आप खाएं बर्गर, फिर आप पिएं कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये कोई तरीका है यार? फास्ट फूड खा रहे हैं आप, खाने ने जाना तो एक ही जगह है ना। मतलब इनका बस चलेगी आपके साथ बाथरूम चले जाएं, वो कैसे कि सर पहले आप निकालें चिप्स, फिर आप निकालें बर्गर, फिर आप निकालें पिस्सी नहीं पेप्सी। अच्छा, यहाँ फूड ब्लॉगर्स का भी जिक्र हो जाए। फूड ब्लॉगर्स भी, फूड ब्लॉगिंग भी आजकल बहुत चल रही है। तो अच्छा, कुछ फूड ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं पैसे खा के या मुफ्त का खा के रेस्टोरेंट्स के ऐसे ऐसे तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं कि बस आप अजीब सा फील कर रहे होते हैं। वो स्टेटस डालते हैं फेसबुक के ऊपर, वी हैड एन ऑसम डिनर एट फलाना रेस्टोरेंट, इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था, हमारे 2 बच्चे हो गए। थोड़ा सा एग्जैजरेट करें, थोड़ा सा। अच्छा, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहता अपनी, मगर मैं इतना हैंडसम हूँ कि कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मैं कहता हूँ कुत्ते के साइज़ पे डिपेंड करता है। फिर कुत्ता जिस गली में हो शेर होता है। अच्छा, आजकल के कुत्ते भी बड़े कुत्ते हैं, मतलब खामखा अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। जब देखो जहाँ देखो ज़बरदस्ती का ऑटोग्राफ दे के चले आते हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू डू सम मिमिक्री। मिमिक्री बहुत पॉपुलर है स्टैंड अप कॉमेडी में। तो आप सबकी इजाज़त में अर्ज़ किया है। ये था सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना। उसके बाद अर्ज है, अरे ओ, ये होता है जब आपको एहसास होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है। उसके बाद अर्ज है, ओ अल्लाह का शुक्र। और ये तब होता है जब आपको एहसास होता है कि वो मोबाइल फ़ोन पीछे वाली पॉकेट में पड़ा होता है। अच्छा, आखिर में आई वुड लाइक टू से समथिंग। अभी आमद हुई है निदा के बारे में थोड़ा सा। निदा बहुत बोली थी बॉयज़ ये बॉयज़ वो। तो अर्ज है, मुझे मत धक्का दो, मुझे मत धक्का दो निदा। ये थे निदा के लास्ट बॉयफ्रेंड। थैंक यू सो मच यू गाइस, दिस वाज माय सेट। You people are awesome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Before we end, I'd like to tell you a little bit about. छुट्टी नहीं हुई. I'd like to tell you guys a little bit about comedy scene. Comedy scene is a troupe for budding stand-up comedians, so anybody can join. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इनसे अच्छे jokes मार सकते हैं तो please get in touch with us on our Facebook. It's Comedy Scene KHI. इसके अलावा thank you so much for coming. We had Harold, give him a round of applause. Hassan.
Basam. Faraz. Kashif. Fahim. Fahad. Nida. And JD. Thank you.